اہم خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافی محسن بیگ کے خلاف مقدمات خارج کرنے کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا سے متعلق تمام کیسز یکجا کر دیے ہیں۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر ونگ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محسن بیگ کے دیگر 2 درخواستیں نمٹا دی ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 24 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ دوران سماعت طلب کرنے پر ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر ونگ عدالت میں پیش ہو گئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر من اللہ نے استفسار کیا، شکایت کنندہ اسلام آباد میں تھا تو مقدمہ لاہور میں کیوں درج ہوا؟ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ ذیشان سید سے۔ جی ذیشان، بتائیے گئے سماعت کے حوالے سے۔ جی بالکل، صحافی محسن بیگ کے کیسز کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ایکٹ کے حوالے سے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو نوٹسز جاری کر دیا اور کہا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے وہ عدالت کو مطمئن کرے کہ اس جرم سے متعلق جو دفعات ہے اس کو سٹرک ڈاؤن کیوں نہ کرے، جبکہ دوسری طرف جو ہے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سائبر ونگ پر اظہار برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف جو ہے وہ شوکاز نوٹس جاری کر دے اور کہا کہ آپ کے خلاف کیوں نہ کارروائی کرے، عدالت کو مطمئن کرے۔ اگر آپ عدالت کو مطمئن کر سکتے ہیں تو ہم کارروائی جو ہے وہ نہیں کریں گے، معاملے کو ختم کریں گے۔ لیکن آج چونکہ عدالت نے یہ بھی بتا دیا کہ جو مقدمہ درج کیا گیا ایف آئی ایم، کیونکہ پہلے سے پیکا ایکٹ کے خلاف یہاں پہ درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، جی اس کے دوران زیر سماعت ہونے کے دوران آپ نے یہ کارروائی کیوں کی؟ یہ کارروائی جو ہے وہ تقریباً اسی حوالے سے آپ کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہیں، عدالت کو آپ نے مطمئن کرنا ہے۔ تو اس کیس کی سماعت جو ہے اب 24 فروری کو ہوگی۔ اٹارنی جنرل عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے دلائل دیں گے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ذیشان آپ کا۔ اہم معاملہ ہے، سوئس بینکوں میں اس وقت کس کی کتنی دولت ہے؟ سوئس سیکرٹ کی تحقیقات سامنے آنے لگی ہیں۔ آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نے اعلان کیا ہے کہ 100 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات جلد سامنے آ جائیں گی۔ سیاستدانوں، جرائم پیشہ افراد اور جاسوسوں کے مالی رازوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ کئی پاکستانیوں کے نام بھی شامل ہیں۔ گارڈین اور لیمونٹ کے رپورٹرز آج تحقیقات سے متعلق پریس کانفرنس کریں گے۔ Exposing the financial secrets of politicians, criminals and spies. پاناما لیکس کے بعد اب سوئس سیکرٹس آنے کو تیار۔ سوئس بینکنگ کی پوری اسرار دنیا سے پردہ اٹھنے کا انتظار۔ یہ تمام تر تفصیلات 47 میڈیا اداروں کے ساتھ مل کر مکمل کی گئی ہیں، جنہیں دنیا کی سب سے بڑی تحقیقات کہا جا رہا ہے۔ تحقیقات میں سیاستدانوں، جرائم پیشہ افراد اور جاسوسوں کے مالی رازوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ کے مطابق ان اکاؤنٹس میں موجود رقوم کی مالیت پاکستانی روپے میں 17,600 ارب روپے ہے۔ مجموعی طور پر 18,000 بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے لائی جائیں گی۔ عالمی میڈیا نے کہا ہے کہ 18,000 اکاؤنٹس میں پڑی بے پناہ رقم ظاہر کرتی ہے کہ منشیات اور انسانی سمگلنگ میں ملوث افراد کس طرح اپنی دولت چھپاتے ہیں۔ 1 سال پہلے اقوام متحدہ نے دنیا بھر سے کہا تھا کہ رقم کی غیر قانونی منتقلی کو روکا جائے، لیکن ان سفارشات کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ قازقستان کے صدر کے اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ قاسم توقائف نے اہلیہ اور بیٹے کے ذریعے اثاثے بنائے۔ امریکہ اور روس میں 77 لاکھ ڈالر کے اپارٹمنٹس، برٹش ورجن آئی لینڈ میں 50 لاکھ ڈالر کے اثاثے بنائے۔ 1998 میں سوئس اکاؤنٹس میں 10 لاکھ ڈالر بھی جمع کرائے۔ مصر کے سابق صدر حسنی مبارک اور سابق مصری انٹیلیجنس چیف عمر سلیمان کے اکاؤنٹس بھی نکل آئے۔ زمبابوے کے سابق صدر رابرٹ موگابے کے مخالفین کو کچلنے کے لیے ایک بینک نے 10 کروڑ ڈالرز کی رقم دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ کرپشن اور منی لانڈرنگ پاکستان جیسے ممالک میں اہم ترین مسئلہ ہے۔ پہلے پیسے چوری کرو اور پھر ملک سے باہر بھیج دو۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، سارے منی لانڈرنگ کرنے والے اتحادی بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ کرپشن اور منی لانڈرنگ ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ عمران خان اسی مسئلے پر مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے امیر ممالک سے اپیل کی ہے کہ غریب ملکوں کے استحصال کو روکیں۔ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں رہے گا یا نہیں؟ فیٹف کا اجلاس پیرس میں آج سے شروع ہو رہا ہے۔ 4 مارچ تک جاری رہنے والے اجلاس میں پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اقدامات سے آگاہ کرے گا۔ پاکستان نے اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی فائنانسنگ کے خلاف بھرپور اقدامات کیے ہیں۔ فیٹف ایکشن پلان کے 28 میں سے 27 شرائط پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے عالمی کنونشن پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔
मुल्की सियासत में हलचल, अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के लिए राब्तों में तेजी, हुकूमत भी डटकर मुकाबले की ठान चुकी है। हुकूमती रहनुमाओं ने वजीर आजम को जहांगीर तरीन से सुलह करने का मशवरा दे दिया है, जबकि शाह महमूद कुरैशी समेत चंद दीगर रहनुमाओं ने तजवीज़ की मुखालफत कर दी है। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने दोनों तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। इस बारे में मजीद डिटेल देंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, बताइएगा क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल, अपोजिशन की साफबंदी को देखते हुए वज़ीर आज़म ने जो मशावरती अमल शुरू किया हुआ है उसमें शामिल ज़राए ने ये बताया है कि वज़ीर आज़म को दो आरा दी गई हैं। पहली राय जो है वो परवेज खट्टक और उनके कुछ करीबी आरा जो ज्यादा सियासी समझ बूझ रखते हैं, जोड़ तोड़ के बाहर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर अपोजिशन जो है वो जहांगीर तरीन के साथ राब्ते कर सकती है, इत्तेहादियों के साथ राब्ते कर सकती है, तो हम अपने ही साथी जो है जहांगीर तरीन जो नाला है उनको मनाने के लिए राब्ता क्यों नहीं कर सकते। ये तजवीज दी गई है उनको वज़ीर आज़म को कि आप जो है वो जहांगीर तरीन के साथ जो है वो लाइन अप करें और वफद को भेजें। परवेज खट्टक की सरबराही में मुमकिन तौर पर वफद जो है वो जहांगीर तरीन की तरफ जा सकता है, और लेकिन इसका फैसला दौरा रूस के बाद होगा। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी का जो ग्रुप है उनका ये कहना है कि जहांगीर तरीन जो है वो अपोजिशन के साथ बहुत कुर्बतों में जा चुके हैं, इसलिए उनको ये अहमियत देने वाली बात भी होगी और उसके अलावा उनकी बारगेनिंग जो है वो बेटर कर देगी अगर हम रास्ता करेंगे, और उनकी अहमियत बढ़ जाएगी और वो अपोजिशन से ज्यादा बेटर डील कर रहेंगे। ये सूरत हाल है और इसके बारे में जरा ये कह रहे हैं कि दौरा रूस के बाद वज़ीर आज़म जो है वो इस पे भी फैसला करेंगे और एमकेएम के सेक्रेटरीट में भी जाएंगे, तो इस तरह नई साफबंदी जो है वो तेजी से नई साफबंदी तेजी से होने जा रही है। बहुत शुक्रिया अली शेर आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए जोड़ तोड़ पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात आज होगी। मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक उमूर पर मुशावरत होगी। मुलाकात में दोनों जमातों के वफूद भी शरीक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इशाया भी देंगे। अहम खबर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज एक रोजा दौरे पर पेशावर पहुंचेंगे। हयाताबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। पार्टी की सूबाई क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक़ अमूर पर मुशावरत की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले से मुताल्लिक़ सियासी हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आएगी। इस बारे में मज़ीद तफसीलात लेंगे लिहाज अली से। लिहाज, क्या तफसीलात हैं मज़ीद? जी, पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी थोड़ी देर बाद पेशावर आएंगे, जहां पर जो उनकी पार्टी की सूबाई सदर है नजमुद्दीन खान, उनके घर में बाकायदा तौर पर एक वर्कर कन्वेंशन का अहतमाम किया गया है। इस वर्कर कन्वेंशन के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी सूबाई काबीना के इजलास की सदारत भी करेंगे, और सबसे अहम जो आज के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का है वो अवामी नेशनल पार्टी के बादशाह खान मरकज का दौरा है। तवील अरसे के बाद अवामी पीपल पार्टी का कोई वफ्द इतनी बड़ी क़यादत में बादशाह खान मरकज जा रहे हैं, और पार्टी की सूबाई सदर इस वक्त असफंदिया एमल वली खान और जो इस वक्त पार्टी के कायम मकाम सदर है अमीर हैदर हूती, उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद ब्रीफिंग का भी अहतमाम किया गया है। और बाकायदा तौर पर अवामी नेशनल पार्टी से 27 फरवरी के मुतालिक जो उनकी लॉन्ग मार्च है उनसे। बहुत शुक्रिया लिहाज आपका। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक कहते हैं तब्दीली के नाम पर तबाही और जमहूरियत के नाम पर जबर किया जा रहा है। अवामी मसाइल की किसी को फिक्र नहीं। हुकूमत रियासती इदारों को छड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। लीगी रहनुमा ने कहा हुकूमत का मंतकी अंजाम बहुत करीब है, ये जलील और रुसवा होकर घर जाएंगे। पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बनाकर ऐवान सदर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई गई है। ऑर्डिनेंस का मकसद सियासी मुखालिफिन को ठिकाने लगाने या मीडिया पर कदगन लगाना है। बहुत करीब है, इन पर अवामी अदम एतमाद कब का हो चुका है, और अब ईवान में अदम एतमाद की तरफ अपोजिशन बढ़ रही। आप देखें ना, तब्दीली के नाम पे तबाही मुसल्लत की गई है और जमहूरियत के नाम पे जबर मुसल्लत किया गया है। पूरी कौम इनकी जान को रो रही है, लोगों की चीखें निकल गई हैं। बेशर्मों की तरह ये कीमतें बढ़ाते हैं, उन्हें कोई ख्याल ही नहीं है कि एक आम आदमी जो है वो कैसे जिंदा रह सकता है। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। काबीना ने मेयर KMC को कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, MDA और LDA के गवर्निंग बॉडीज के दीगर अरकान मुकर्रर करने के इख्तियारात देने की मंजूरी दे दी है। सूबाई फाइनेंस कमीशन बनाने की मंजूरी भी दी गई है। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका मेयर और चेयरमैन HAD, सेगमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी और लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की गवर्निंग बॉडीज के रुकन होंगे। ज़िले और ताल्लुका हेडक्वार्टर्स को भी टाउन कमेटियां बनाने की हिदायत कर दी गई है। काबीना के में सिंध के तमाम इस्लामी यूनिवर्सिटियां या उनके कैंप्स कायम करने की मंजूरी भी दे दी गई है।
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान भी मजाक बन गया। कमीशन ने इम्तिहानी पर्चा लीक होने की तहकीकात कराने का फैसला कर लिया। इम्तिहानी पर्चे के 10 सफ़ात की तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इम्तिहानी पर्चा एक CSS एकेडमी के फेसबुक पेज पर लगाया गया है। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि एक फेसबुक पेज पर यह पर्चा लगा दिया गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान भी मजाक बन गया है। कमीशन ने इम्तिहानी पर्चा लीक होने की तहकीकात कराने का फैसला कर लिया। इम्तिहानी पर्चे के 10 सफ़ात की तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। अभी खबर है कराची से। कराची के जिन्ना अस्पताल में गुज़श्ता रात डॉक्टर्स पर तशद्दुद का वाक़या। मुल्ज़िमान अभी तक कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं। डॉक्टर्स ने अदम तहफ़्फ़ुज़ और मुल्ज़िमान गिरफ्तार ना होने पर एहतजाजन धरना दे दिया है। OPD समेत दीगर शोबे बंद कर दिए गए हैं। अस्पताल में मरीज ख्वार होकर रह गए हैं। इसी बारे में मज़ीद डिटेल्स देंगे मोना सदीकी से। जी मोना। डॉक्टर्स पर तशद्दुद का नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसके बाद तमाम डॉक्टर जो है YDA के वो सरापे एहतजाज बने हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ नाखुशगवार वाक़या जो पेश आया उसमें मुल्ज़िम ज़हीर अहमद के खिलाफ उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करके पुलिस मज़ीद जो है उससे तफ्तीश कर रही है। इस वक्त YDA के मेंबर्स ही हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। उनसे पूछते ये वाक़यात से पहले एक्टिव क्यों नहीं होती गवर्नमेंट एंड जो JPMC एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सिक्योरिटी है बिल्कुल नाहल सिक्योरिटी है। पुराना आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म किया जाए, एक नया कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमारे आर्मी के लोग होते हैं जो रिटायर, वो आपने रखने हैं यहाँ पे। और दूसरा ये है कि जैसे SIUT ट्रामा सेंटर NICVD में 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट एक पॉलिसी है, तो वो पॉलिसी होनी चाहिए। YDA डॉक्टर्स का यही कहना है कि डॉक्टर्स को जो है सिक्योरिटी फराहम की जाए, वरना ये दूसरा इनका लाया अमल जो है प्रोटेस्ट से बढ़ के भी जो है मजीद बढ़ सकता है। जी, पहली बार PMC की नाकिस पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की तकरीबन 6000 सीटें खाली रह गई। पाकिस्तान के सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की कई दहाइयों की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में सीटें खाली रह जाएं। पामी का कहना है कि कमीशन को अब भी होश के नाखून ले लेने चाहिए और मुस्तकबिल में ऐसी किसी भी गलती से गुरेज करना चाहिए। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद से। जी मियां नवीद, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, पामी का ये कहना है कि हमेशा से सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में पहले एडमिशन होते हैं और उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन शुरू किए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती इस साल काउंसिल की तरफ से 1 जुलाई को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन शुरू करने का नोटिस जारी कर दिया गया। तो सरकारी कॉलेज ने अपने एडमिशन दिसंबर में शुरू किए। तो इस हवाले से सरकारी एडमिशन खत्म होने की तारीख 10 जनवरी दी गई और प्राइवेट कॉलेज एडमिशन मुकम्मल करने की तारीख देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस हवाले से ये बताया गया कि सिंध हुकूमत की जानब से नोटिस लिया गया और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जो है वो पॉलिसियों को वहां पर बर वक्त इकदाम किए, तो वहां पर जो है वो तमाम इकदाम करने के बाद सीटें मुकम्मल कर ली गई। लेकिन आज भी पंजाब में 6000 के करीब सीटें जो है वो खाली रह गई। इस हवाले से पानी की जानब से जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने की अपील की गई है कि फौरी तौर पर संजीदगी से इस मामले का नोटिस लें, ताकि जो है वो फ्यूचर में इस तरह के जो मामला को हल किया जा सके और इस तरह की जो सीटें खाली ना रह जाएं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मियां नवीद इस हवाले से तफसीलन। और अब आपको बताएं, कोयटा के मज़ाफ़ात में वाक़े जबल नूरैनी रोशनी का पहाड़ एक ऐसा मुकाम है जहां कुरान करीम की जिल्दों और मुक़द्दस औराक को महफूज किया जाता है। जबल नूर में तकरीबन 25 लाख कुरान की जिल्दें ज़ख़ीरा हैं। न्यूज़ के सिलसिले बलोचिस्तान डायरीज़ में पेश है इस हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट। पहाड़ जो है चलतन पहाड़ के करीबी एरिया में वाक़या है। इसका नाम है जबल नूर अल कुरान। ये असल एक जबल है। जबल नूर अल कुरान इसलिए क्या रखा दिया इसका नाम कि इसमें मुख्तलिफ कुरान शरीफ मुख्तलिफ मिसाल सूबों से पूरे पाकिस्तान से पुराने कदीमी 400, 450, 500 तकरीबन इसी तरह के कुरान शरीफ महफूज हैं। और इनमें से ये चलतन पहाड़ के एरिया में वाक़या इनमें से 2 भाई जो सन 1992 में उन लोगों की मेहनत की वजह से आज ये सयाहों का जो है ना मरकज़ बनाया और लोग इधर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ये सुरंग बहुत लंबी चौड़ी थी, उसके बावजूद उसको फिर बंद किया। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पब्लिक की इधर आना ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से इसको जो है ना भी कंट्रोल में लाया गया है। एक साइड होता है लेडीज़ का और मर्द का, एक साइड होता है जो कुरान शरीफ की ज़ियारत करने के लिए बिल्कुल अच्छा माहौल है। और जो बाहर से लोग आते हैं तो बिल्कुल उनको इज़्ज़त मिलता है। और यहाँ के ख़ासकर इंतज़ाम भी यहाँ हैं फ़ौरन से माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद देखे।
मौसम का अहवाल आपको बताएंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज तेज हवाओं के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, जबकि बाद मकामात पर यालाबारी भी होगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा। लेह -14, कालाम, इस्तौर -7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ सर्द तरीन मकामात रहे। इस्लामाबाद में वेमन फेस्टिवल का इनेकाद, खाने पीने के अशिया और कपड़ों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। सबीन शहबाज की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में वुमेन गाला फेस्टिवल, बच्चे बड़े और खवातीन समेत सबकी शिरकत। मेले में पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट किया गया। ट्रक आर्ट, पेंटिंग, कपड़े और मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। शॉपिंग के साथ साथ लोग खाने पीने की चीजों से भी लुत्फानंदोज होते रहे। ट्रक आर्ट का स्टॉल लगाने वालों का कहना था कि ट्रक आर्ट का मकसद पाकिस्तान का कल्चर दुनिया भर में प्रमोट करना है। पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ट्रक आर्ट, इसको मैं मग्स पर प्रिंट करवाता हूँ और फिर लोग देखते हैं, जैसे कि आप सबके सामने आज लोग आ रहे हैं। एक अच्छा फेस्टिवल है। हाथ से तैयार किए जाने वाले मुनफरिद क्लच भी तवज्जो का मरकज रहे। अपने पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने आए हैं। इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नेओ।